Good afternoon, students. Today we are discuss about the ribosome. As we know that the ribosome you have seen it is mostly found in prokaryotes and eukaryotes, and in the some cell organelles also it has been found. So it is one of the most important part or the most important cell organelle which has been used for the प्रोटीन सिंथेसिस. जब सेल को कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर दैट रिक्वायरमेंट दे हैव टू सेंड मैसेज टू द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर द डीएनए हैज फॉर्म्स द एमआरएनए, एंड द एमआरएनए will come out from the nucleus, and in the endoplasmic reticulum the protein synthesis is taking place. Yes, so the main function of the endoplasmic reticulum is the protein synthesis. It is the protein factory or the protein factory of our cell. Yes, so here we are going to discuss about some their all the one by one we are going to discuss all the points regarding the ribosome. Yes, so first it is isolated by the chloride from the cytoplasm, but he called as a microbody or microsomes. Yes, whereas the Robinson and Brown has observed in the root cells, but they are not knowing that it is the ribosome. Yes, the term ribosome is given by the Pallidae. Yes, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैलेडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है इसे कई बार. यस, so this is regarding the history of the ribosome. Now ribosome it is a non membranous structure. इसमें आपको कोई भी membrane नहीं दिखाई देगा. It is a non membranous structure है ये. Yes, it is found मेनली इन प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी हमें देखने मिलता है. यस, बट विथ एक्सेप्शन इट इज डजंट फाउंड इन द मैच्योर sperm and the mature RBC. It doesn't found in these two cells. Yes, then it found in organelles में भी हमें देखने मिलता है, like the mitochondria, plastids. Yes, and here the ribosome which is present in the mitochondria, it is called as the ribosomes, whereas the ribosome which is present in the plastid, it is called as the plastoribosomes. Yes, so they are found in both prokaryotes and eukaryotes. दोनों टाइप की सेल्स में आपको जो है प्रोटीन जो है वो देखने के लिए मिलेगा. Yes, नाउ डिपेंडिंग अपॉन की जो राइबोसोम है वो किस तरह प्रेजेंट है. इफ इट इज फ्री है वो साइटोप्लाज्म में, सो इट इज कॉल्ड एज द फ्री राइबोसोम. दे आर फाउंड ऑन द साइटोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली अवेलेबल है, मतलब in the cytoplasm it is present in like this, so it is called as the free ribosome. Whereas in the endoplasmic reticulum, nucleus or in the mitochondria you will find it is bound. ये उससे जो organelle है उससे bound रहता है, so because of that it is called as the bound ribosome. Yes, so the ribosome can be appear in the two form as it may be in the free ribosome or it may be as a bound ribosome. Free ribosome which is mainly found in the cytoplasm where it is freely moving here and there, whereas in the some organelles like endoplasmic reticulum, nucleus, mitochondria, it is remain bound to that cell organelle, so because of that it is called as the bound ribosome. Yes, नाउ राइबोसोम जो है वो कैसे बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स. द जनरली अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. यस, इट इज कि यहाँ पे हमें दो सब यूनिट्स देखने मिलता है, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट देखने मिलता है. यस, सो हियर द लार्जर सब यूनिट दे हैव टू सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट्स एंड द स्मॉलर सब यूनिट्स. यस, दिस लार्जर सब यूनिट्स इट अटैच टू द मेम्ब्रेन. जो भी मेम्ब्रेन है, अगर हम बात करते हैं इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी मेम्ब्रेन रहे तो इट इज द लार्जर सब यूनिट विच गेट बाइंड टू द membrane. Yes, whereas these
स्मॉलर सब यूनिट इट रिमेन्स फ्री, ये कैसा रहता है, ये फ्री रहता है, और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो बाउंड होता है. यस. नाउ with the now this protein sorry now this ribosome will bind to this membrane with the help of certain protein, and that protein you called as the ribofourin. That protein is called as the ribofourin. Here, if it is the larger subunit, और ये membrane है, then this is the protein by which this larger subunit will bind to this membrane, that is the ribofourin. Yes. So this is कि राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से बना हुआ है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट हमेशा इट बाउंड्स टू द मेम्ब्रेन, जो भी सेल ऑर्गेनल के जो मेम्ब्रेन है उससे वो बाउंड रहेगा, इट इज द लार्जर सब यूनिट. वेर इज द स्मॉलर सब यूनिट इट इज फ्रीली अवेलेबल या फ्री रहेगा. यस. नाउ the protein which is responsible for binding of this ribosome to the membrane, it is the ribofourin. It is the ribofourin. So these are the two subtypes. Yes. कि उसके सब यूनिट्स आप बोल सकते हैं राइबोसोम्स के, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, उसके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं. सो हियर the ribosomes are of two type, that is 70S ribosome and 80S ribosome. Yes. Where is the S is the sedimentation coefficient or it is also called as the Svedberg unit. ये एक ऐसी यूनिट है जो अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज इज एन इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट वेयर जिस तरह से एक इस तरह का इक्विपमेंट है जिसमें आप कोई भी चीज़ को रोटेट कराते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिकुलर वेट दे आर गोइंग टू सेटल एट अ सर्टन डिस्टेंस पे जाके वो क्या होते हैं, सेटल होते हैं. सो हियर द 70S ribosome, here the S is called as the sedimentation coefficient, where जो आप बोल सकते हैं कि वो 70 यूनिट पे जाके क्या हो रहा है, खुद को सेडिमेंट कर रहा है, खुद को जो है वो नीचे की तरफ लेके आ रहा है, सेडिमेंट कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द 70S ribosome, whereas the 80S ribosome which is found in the eukaryotes, they are sediment at the 80S, वो वहाँ पे जाके सेडिमेंट होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द 80S राइबोसोम. यस. और यहाँ पे इसको बोलेंगे 70S राइबोसोम. हियर द 70S राइबोसोम इट इज मेनली फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, वेयर इज द 80S राइबोसोम इट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. यस. हियर द S रिप्रेजेंट द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और इट इज द स्वेडबर्ग यूनिट. यस. वेरेज द जहाँ पे उसका सेडिमेंटेशन होता है, जिस आप बोल सकते हैं रेट पे जाके वो सेडिमेंट हो रहा है, सो दैट इज द 70 एंड 80. यस. So the 70S ribosomes, they are found in the prokaryotes and the cell organelles, whereas the 80S ribosome they found in the eukaryotic cells. Yes. Now the 70S ribosome unit have two subunit. उसके वो जो 70S ribosome है ये दो subunit से बना हुआ है. The 50S is the larger subunit and 30S is the smaller subunit. Yes. 50S is the larger subunit and 30S is the smaller subunit. Yes. Whereas 80S ribosome it is made up of 60S of larger subunit, whereas 40S of smaller subunit. इस तरह की ये जो यूनिट्स है दे वह उसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. यस. अब नॉर्मली जो है दे आर फाउंड, ये जो सब यूनिट्स होते हैं दे आर फ्री रहते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जब उनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जब राइबोसोम का फुल असेंबली की रिक्वायरमेंट होती है, एट दैट टाइम दे गेट वो पास में आते हैं एक दूसरे के. यस. वेरेज अदर टाइम वो सेपरेट रहते हैं. यस. सो इन द 70S राइबोसोम यू विल सी कि 60 to 65% ऑफ rRNA is present, whereas 35 to 40% is the protein is present. Yes. अगर हम 70S यूनिट की अगर बात कर रहे हैं, if we are talking about this ribosome, here the 60 to 65% of rRNA present है. rRNA मतलब राइबोसोम जो है वो किन से बना हुआ है, RNA and
प्रोटीन से बना हुआ है. सो हियर द परसेंटेज ऑफ देयर 60 to 65% is of rRNA, that is the ribosomal RNA, and 30 to 40% is of protein. यहाँ पे अगर हम उसको देखते हैं, if we are going to divide it, 20S राइबोसोम, जो हम 70S राइबोसोम जो है उसमें से जो आप बोल सकते हैं rRNA जो है, इट इज़ द 30S, 5S एंड 16S, उसमें हम उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं. यस, मीन 70S जो राइबोसोम है, इट गेट डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स, दैट इज 23S rRNA, 5S rRNA and 16S rRNA, whereas 23 and 5S RNA, it is found in the larger subunit, and 16S RNA, it is found in the smaller subunit. Yes, and whereas in 80S राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, तो in this you will find कि यहाँ पे RNA और प्रोटीन जो है, they will found in the equal, near about equal, उसमें आपको contribution दोनों का दिखाई देता है. Yes, here the 45% of rRNA and 55% of the protein. Yes, so here जो rRNA है, they are of 4 types, that is 28S, 5.8S, 5S, yes, and 18S, whereas 28S, 5.8S, 5S, these are found in the larger subunit, and 18S, they are found in the smaller subunit. Yes, so these are the components of the ribosome. Yes, और आप बोल सकते हैं कि वो राइबोसोम जो है वो किससे बने हुए, इट इज मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन्स, एंड दीज आर देयर concentration. Yes, now if we are going to see the structure of the ribosome in detail, अगर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, सो जो लार्जर सब यूनिट है, हम देखते हैं कि इट इज़ मेनली ऑफ ओवल शेप, या हम उसको डोम शेप की बनाते हैं. सो इट इज़ लाइक दिस, कि ये जो आपको यूनिट दिख रहा है, दिस आर द larger or the larger subunit of the ribosome. Yes, here during the protein synthesis, this larger and smaller subunit, they are combined together and they help in the protein synthesis. अब ये जो protein synthesis होता है, there are certain sites on the larger subunits, they as A, P and E. These are the sites where the A stands for the amino acyl site, or it is also called as the acceptor site. जो एक acceptor site means जहाँ पे अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं. whereas दिस इज द पेप्टिडिल साइड. यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है. एंड हियर यू विल सी, आपको एक टनल की तरह दिखाई दे रहा है. दिस टनल विल हेल्प हियर द लार्जर सब यूनिट वेयर इट कंबाइन, इट्स बाइंड्स टू अ मेम्ब्रेन, एंड इट द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन हो सकती है, ये मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो सकती है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया की हो सकती है, या प्लास्टिड की हो सकती है, और यू मे कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट की हो सकती है. सो इन दैट केस क्या हो रहा है, हियर द राइबोसोम जो है, दिस दे एक्सेप्ट द अमीनो एसिड, दे पेप्टिडिल, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड फ्रॉम दिस टनल दे आर गोइंग टू गो इनसाइड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द अदर सेल ऑर्गेनल. You are not in your syllabus till now, you have not to discuss more about the protein synthesis. हम सिर्फ इसमें यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम has the larger subunit, and this larger subunit, they have the 3 side, that is the A, P and E side, whereas A is the acceptor side, P is the peptidyl side, and E is the exit side. And with the help of this tunnel, the protein synthesis, or the protein goes into the endoplasmic reticulum, and from the endoplasmic reticulum it goes to the Golgi complex, where the packaging or the modification of the protein is taking place, and from there they have to go to the different site of the cells, या जहाँ पे उसकी requirement है वहाँ पे वो जो protein है वो चला जाता है. Yes, so we are now focusing more about this larger subunit, and here the smaller subunit where the
आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज लाइक दिस एंड हियर द साइट फॉर द mRNA बाइंडिंग साइट, दिस इज द mRNA बाइंडिंग साइट। यस, यहाँ पे क्या होता है, mRNA बाइंड होता है, मीन्स नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो इट इज लाइक दिस, इस डोम शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लाइक yes, these are the larger subunit and this is the smaller subunit. This is the site where the mRNA will bind, and from the mRNA it carry the information from the DNA, and from that so here the protein will come into the endoplasmic reticulum, from where it goes into the Golgi complex and other cell organelles. Yes, so what is the main function of this ribosome? Its main function of the ribosome is help in the protein synthesis. Now it is not in your syllabus, but we are just going to see what is happening and how the ribosome will help in the protein synthesis. So it is, for example, if this is the nucleus and in the nucleus there is a DNA is present, yes, एंड डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन आई है, एक रिक्वायरमेंट आई कि वी हैव टू प्रोड्यूस एन अल्फा प्रोटीन। यस, अल्फा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आई कि हमें ये प्रोटीन बनाना है। द ऑल द कोडिंग विच इज़ प्रेजेंट और द सब जेनेटिक मटेरियल और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द डीएनए। यस, सो डीएनए विल फॉर्म्स द एमआरएनए। वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली खुद नहीं जाएगा, वो किसको देगा इंफॉर्मेशन, mRNA को, मैसेंजर RNA को। यस, DNA is going to send information to the mRNA and this mRNA will carry out, आगे की प्रोसीजर है वो कैरी आउट करेगा। यस, सो दिस mRNA which is जो बन चुका है न्यूक्लियस में, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस mRNA कम इनटू द cytoplasm. Yes, it come into the cytoplasm. In the cytoplasm हम जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस से ही लग के क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Yes, this endoplasmic reticulum is present and this endoplasmic reticulum you will find there is a ribosome. यहाँ पे ribosome present है। Yes, and this ribosome, this mRNA goes into the, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला गया है, वेयर हिट राइबोसोम जो है वो क्या करेगा, इट विल गोज टू द राइबोसोम के पास, कहाँ गया, mRNA। यस, राइबोसोम के पास कौन गया, mRNA गया। इट कनेक्ट टू दी, हम इसको थोड़ा मैग्नीफाई में देखते हैं कि अगर हम देखते हैं, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यस, एंड दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। यस, सो ये जो राइबोसोम है जो कहाँ पे अटैच है, इट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, इट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हियर द राइबोसोम कम एंड कनेक्ट विद द, ये कहाँ जाके, ये स्मॉलर सब यूनिट पे जाके अटैच हो जाएगा। यस, दिस इज द mRNA जो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आया है, डीएनए से, न्यूक्लियस के पास से। यस, अब ये जो mRNA होता है, दे हैव द सीक्वेंस और द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, एंड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और दे ऑलवेज इन द ट्रिपलेट फॉर्म। यस, ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। यस, अब क्या होगा, दिस इज द एक्सेप्टर साइड, दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एग्जिट साइड। यस, जैसे धीरे धीरे एक्सेप्टर एंड हियर द tRNA, ट्रांसफर आरएनए। यस, जैसे tRNA अमीनो एसिड, ये जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद देन इफ दिस इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हियर द tRNA गेट अटैच, यहाँ पे tRNA अटैच होगा, यहाँ पे अमीनो एसिड रहेगा पर्टिकुलर, दिस इज द अमीनो एसिड 1 जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे, दिस इज द इनिशिएशन कोडॉन, दैट इज these are the different codons, these are the codons, and AUG is the
कोडॉन। ये हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, अगर आपको नहीं भी समझता है तो इट डजेंट मैटर, ये आपको 12th क्लास में ही है। यस, सो क्या हो रहा है, हम जस्ट उसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, दिस इज द लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में हम देख रहे हैं कि दिस इज द एक्सेप्टर साइट, दिस इज द पी साइट एंड दिस इज द ई साइट। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्टर साइट में द अमीनो एसिड जो है वो कोडॉन्स अंदर आ रहे हैं। हियर द टीआरएनए अटैच टू दिस कोडॉन एंड विद जैसे ही टीआरएनए को पता चलता है यहाँ पे जो कोडॉन है वो अमीनो एसिड यहाँ लेके आता है, एंड दिस अमीनो एसिड धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से चेन बनते जाती है यहाँ पे अमीनो एसिड की। यस, एंड दिस अमीनो एसिड चेन will from this tunnel goes into this endoplasmic reticulum, and from this endoplasmic reticulum it will in the form of this vesicle, small vesicle, it goes into the that is a Golgi complex, or from this small Golgi complex it get modified and where it get packaged, and from there there is a requirement of this protein, वो protein वहाँ पे particular site पे वो पहुँच जाता है। Yes, so this is the way by which this ribosome जो है it is the वेरी मच इम्पॉर्टेंट सब यूनिट है आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। यस, सो इट इज ऑल्सो, सो द राइबोसोम इट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री। यस, सो बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। यस, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द राइबोसोम, वी हैव डिस्कस अबाउट द सब यूनिट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, और वो जो टाइप्स हैं उनके हमने डिफ्रेंसिएशन देखे कि कैसे कैसे वो दोनों एक 70S एंड 80S एक दूसरे से अलग है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये बोल सकते हैं कि these are the ribosome which are very much important for the protein synthesis, and they are freely available in the cytoplasm, they are called as the free ribosome। और उनके सब यूनिट्स जो है वो हमेशा आपको अलग अलग, स्मॉलर सब यूनिट्स अलग एंड लार्जर सब यूनिट ये अलग अलग मिलेंगे, बट जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ राइबोसोम। यस, दे फॉर्म अ राइबोसोम। यस, so that is the main function of this ribosome and all the description। So now come to the book, what given in the book। Yes, you are aware that the ribosome are the protein factory of the cell। Yes, it is the protein factory, they use the genetic information to synthesize the protein। वो क्या यूज कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। यस, विच इज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो इंफॉर्मेशन लेके आता है और इट विल सिंथेसाइज द प्रोटीन। The ribosome was first observed as a dense particles in the electron microscope of a cell by the scientist called Palladay in 1953। Yes, the ribosomes are made up of ribosomal RNA and protein। ये किससे बना है, rRNA and protein से बना हुआ है। They do not have any membranous covering around them। Yes, उनमें कोई कवरिंग नहीं होती है। अब अगर हम इनके डायग्राम या आपको यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिया है डायग्रामेटिक, उसमें अगर स्टडी करते हैं, दिस इज द प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। द प्रोकैरियोटिक इज कॉल्ड एज द 70S राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक इज कॉल्ड एज द 80S राइबोसोम। मीन्स यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स मिलेगा देखने आपको, एंड प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स मिलेगा। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स। अब हमने इनको डिवाइड किया कि जब उनके जो सब यूनिट्स है दे मेड अप ऑफ 50S एंड 30S सब यूनिट्स। यस, यहाँ पे जो है दोनों का सबमिशन नहीं हुआ है कि जैसे हम देख रहे हैं कि 50 और 30 मिला है तो 80S होता है। सो दैट इज नॉट कि ये दोनों का सबमिशन हो रहा है, इट इज कि जब अगर ये सेपरेट रहते हैं इन द सेपरेट कंडीशन दे सेडिमेंट एट 30S, they sediment at 50S, but when they combine together they sediment at 70S। yes, that is the meaning of कि यहाँ पे 70S क्यों हम इसको उसका सबमिशन नहीं कर सकते क्या, इसको प्लस दोनों मिलने के बाद तो ये 80 होता है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। ये अलग एस जो हमको बता रहा है, इट इज द सेडिमेंटेशन यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, स्वेडबर्ग यूनिट है।
इट रिप्रेजेंट कि ये कहाँ जाके कौन से इस पे जाके वो सेडिमेंट हो रहा है. यस, सो हियर दे सेडिमेंट एट 30s. इट्स लार्जर यूनिट सेडिमेंट एट 58, बट व्हेन दे कंबाइंड दे सेडिमेंट एट 70s. यस, सो हियर वी यू विल सी, जैसे हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो 30s राइबोसोम है, सॉरी स्मॉलर सब यूनिट है, it is has further divided, जो it is made up of 16s rRNA and 21 प्रोटीन से बना हुआ है. whereas 50s सब यूनिट जो है it is made up of 23s rRNA, 5s rRNA and 34 प्रोटीन से वो बना हुआ है. whereas if we are talking about the eukaryotes, in which they are made up of two subunit, that is 40s and 60s, in the combination of both is 100s, but it is not the submission, it is the वो कहाँ पे जाके सेडिमेंट होते हैं, सो दैट इज द ATS पे जाके वो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट दे गेट सेडिमेंट, सो बिकॉज ऑफ दैट it is called as ATS ribosome. Yes, here the 40s subunit, it is made up of 18s rRNA and 33 proteins, whereas 60s subunit, it is made up of 20s rRNA, 5.8s rRNA, 5s rRNA and 50 proteins. Yes, so these are their composition or combination. Yes. Now, in the eukaryotic cell, the ribosomes are present in mitochondria. हमने देखा है कि in the eukaryotic cell they are also present in the mitochondria, help in the ATP formation. Then they also present in plastid or in the chloroplast. They also present in the cytosol, that is called as the free ribosome. Yes. The ribosome in cytoplasm are either found attached to the outer surface of the endoplasmic reticulum and near न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. यस, सो अगर वो कोई भी सेल ऑर्गेनल के जो मेम्ब्रेन है उससे बाउंड रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द बाउंड राइबोसोम. अगर वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड रहते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज द फ्री राइबोसोम. यस, both are similar in structure and are ATS type. Yes, each ribosome is made up of two subunit, a large and small subunit. Bound ribosome generally produce the protein that are transported outside the cell after processing in endoplasmic reticulum, Golgi body. For example, bound ribosomes of acneous cells of pancreas produce the pancreatic digestive enzymes, and free ribosomes comes together form the chain called as the polyribosomes for the protein synthesis. अगर हम बात करते हैं कि जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग बाउंड राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, सो दे आर हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन विल ट्रांसफर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इट गोज टू द पर्टिकुलर साइट जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक्नियर सेल जो है, यहाँ पे बाउंड राइबोसोम जो एक्नियर सेल पे प्रेजेंट है, दे आर प्रोड्यूसिंग दिस डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड दिस डाइजेस्टिव एंजाइम वेयर गोज टू द साइट वेयर लाइक स्टमक में वो जाएगा, जहाँ पे वो हमारे जो भी फूड है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, the ribosomes are attached to this acnear cell of the pancreas. Yes, and here they produce the digestive enzymes. Yes, so it as per the requirement जो भी प्रोटीन है वो बनता है और वो अपने अपने साइट पे पर्टिकुलर जगह पे चला जाता है. जब यही फ्री राइबोसोम्स जब वो कंबाइंड होते हैं, जब ये उनकी एक पर्टिकुलर चेन बनती है, सो दैट चेन यू कॉल्ड एज द पॉलीराइबोसोम. उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम. ये कब बनता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. The free ribosomes generally produce the enzymatic protein that are used in cytoplasm like enzymes required for breakdown of sugars. Both types of ribosome, both types means free wale and bound ribosome, they are interchange their position and function. या कभी free वाले bound हो सकते हैं, bound वाले free हो सकते हैं. They are free to interchange their position and function. The number of ribosomes is high in highly or actively engaged in the protein synthesis. इनके numbers हमको बहुत ज़्यादा कब मिलेंगे, जब वो protein synthesis करेंगे. Yes.
The particle size of ribosome is measured in terms of Swedberg unit. Yes, उनका size जो है उसको हम किस में measure कर रहे हैं? Swedberg unit में 70s, 80s, 30s, 50s. Yes, उनके size की बात कर रहे हैं हम. तो स्वेटबर्ग जो हो गई वो किस उसकी यूनिट होगी जिसमें हम उसको उसके साइज के हिसाब से मेजर कर रहे हैं. ये आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि इन द 70s और 80s द S स्टैंड फॉर, तो इट इज स्टैंड फॉर द स्वेटबर्ग यूनिट. इट इज द मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल in a ultracentrifuge. Ultracentrifuge या centrifuge, it is an equipment which is used for the different अलग अलग कोई भी चीज कोई भी मटेरियल के अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है, सो इन दैट द सेंट्रीफ्यूज कैन बी यूज. यस, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट वो क्या होंगे, अलग अलग जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. सो इट इज बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल साइज के हिसाब से वो उनमें सेडिमेंटेशन उनका अलग अलग होता है. यस, सो इट इज दस अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ अ पार्टिकल. Yes, whereas 1s is equal to the 10 to the power minus 13 second. Yes, so this is the उसका आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताया गया है. सो मेन इज द स्वेटबर्ग यूनिट जो यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द राइबोसोम्स. एंड हियर बेस्ड ऑन दिस पार्टिकल साइज they can be differentiated as 70s, 80s and their subunit as 50 and 30s, 40 and 60s. Yes, so this is the ribosome. Yes, hope you understand the video in which we have covered most of the things. Yes, so see you in the next video where we are discussing about the nucleus, and we have left with the two topic, that is nucleus and the cytoskeleton structure, that is cilia and flagella. इनके बारे में भी हमें पढ़ना है. So see you in the next video. Goodbye.